Hello and welcome back to Step by Step Study. In today's video we will discuss some previous year papers from topic number 4, which is moments, skewness and kurtosis. So we'll start with 2023 question paper. 2023 में first question आया था from the very and most important relationship between your central moments and moments about an arbitrary point. Question was given below are the moments about an arbitrary point or arbitrary origin 5. At some times हम इस arbitrary origin को assumed mean भी कहते हैं, and we are given that these moments are first moment is -4, second 22, third -117, fourth 560, and we had to find out mu3, which is your third central moment. To calculate your third central moment, I hope you remember that we had these relationships जो हमने वीडियो में भी देखी थी, लेक्चर वीडियोज़ में. So since we have to find out mu3 and हमें बाकी सारी values given हैं, so the answer for mu3 will equal to mu3 prime, which is minus of 117 minus 3 into mu2 prime. Mu2 prime is 22 into mu1 prime, which is minus of 4, plus 2 into mu1 prime, which is 2 into minus 4 का cube. So you will have this as equal to minus 117 plus 264 and minus 128. So your final answer hence will equal to 19, which is option number 3. अभी इन्होंने थर्ड सेंट्रल मोमेंट पूछा है. मे बी द नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर कैन आस्क यू अबाउट द सेकेंड और द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट वैल्यू. ऑल्सो रिमेंबर that your mu1, which is your first central moment, is equal to 0 because of the property of arithmetic mean, which says that sum of deviations from your arithmetic mean are equal to 0. Then coming to the next question, in case of a certain distribution the following results were obtained. We are given the values for mean, median and coefficient of skewness, and हमें standard deviation find out करनी है. I hope you remember, अगर coefficient of skewness given है, this is your Pearson's coefficient of skewness. Why Pearson's? Because Pearson's coefficient of skewness में ही हमें mean, median, mode and standard deviation की values use होके आप coefficient of skewness find out करते हो. So what is your Pearson's coefficient of skewness? It is equal to x bar minus z upon sigma, that is mean minus mode upon sigma. Since हमें यहाँ पे mode की value नहीं given है, so we will use the formula for median, and I hope you remember वो formula कैसे आता था. हम z, which is your mode, is equal to 3 median minus 2 times mean को यूज़ करके इस फॉर्मूला को चेंज करते थे, एंड हेंस द फॉर्मूला यूज टू बी 3 into x bar minus m divided by sigma, which is 3 into mean minus median divided by sigma. We are given that coefficient of skewness is equal to minus 0.4. This is equal to 3 into mean की वैल्यू क्या given है 45, median की value is 48, and we have to find out standard deviation, which is sigma. So we will have your standard deviation sigma as equal to 3 into minus of 3 divided by minus 0.4, or we will have this as equal to 90 divided by 4, which is equal to 22.5. So your correct answer is option number 3, 22.5. Next question, if mean is equal to 39.27, median is 45, standard deviation that is SD is equal to 22.81, then coefficient of skewness is.
अगेन हमें पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है, विच इज़ नथिंग बट 3 टाइम्स योर मीन माइनस मीडियन divided by standard deviation. You can write either as sigma or we can write SD as given in the question. So this will equal to 3 into mean कितना given है 39.27, median value क्या है 45, divided by standard deviation क्या है, it is equal to 22.81. So we will have this as equal to minus of 0.7536, which is approximately minus of 0.754. So your correct answer is option number 3. Moreover, आप इतना टाइम स्पेंड भी सेव कर सकते थे. हाउ? एज यू कैन सी न्यूमरेटर आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर शुड बी अ नेगेटिव नंबर. एंड फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शंस द ओनली ऑप्शन जहाँ पे आपको नेगेटिव साइन या नेगेटिव नंबर दिख रहा है इज ऑप्शन नंबर 3. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we are given that mu r dash and mu r respectively denote the rth moment about origin and mean. Then which of the following relations is correct? As we know, we have this relation between your moment about origin, which is mu r prime, and moments about mean or central moment, which are these mu 1, mu 2, mu 3 and mu 4. So the correct option is first option, mu 2 is equal to mu 2 prime minus mu 1 prime square. So I hope you would have memorized this relationship. इस relationship के basis पे आपको काफ़ी questions मिलेंगे, not just in this 2023 paper but also in the other previous year papers also. Coming to the next question, in case of a moderately skewed frequency distribution, the mean is 50 and median is 53. If coefficient of variation is 20%, then coefficient of skewness is. Again coefficient of skewness है mean और median की value है. So we know that the formula which we will use is 3 times mean minus median divided by your standard deviation. But point is, अब आपको coefficient of variation given है and आपके पास ये सिग्मा की वैल्यू नहीं है. Therefore we will use the formula for coefficient of variation जो हमने टॉपिक नंबर 3 में पढ़ा था, which was sigma upon x bar into 100. अब यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दिस coefficient of skewness. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है 20%. सो 20 इज इक्वल टू सिग्मा हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय एक्स बार विच इज़ 50 इंटू 100. सो यहाँ से आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी एज इक्वल टू 10. वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू मीन इज़ 50, median is 53 divided by sigma which is equal to 10. So this will equal to 3 into 3 divided by 10 or 9 divided by 10 or minus 0.09. Again इस question में भी only option with a negative in front of the value is option number 1. तो आप ये calculation भी avoid कर सकते थे. Next question number 56. The standard deviation of a symmetrical distribution is 3. What must be the value of the fourth moment about mean for the distribution to be mesokurtic? So we know अगर distribution mesokurtic है उस केस में आपके पास पियर्सन्स का जो बीटा कोएफिशिएंट होता है which is beta 2 coefficient that is equal to 3 for your mesokurtic डिस्ट्रीब्यूशन. मोरोवर आप ये बीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हो? दिस इज इक्वल टू योर फोर्थ सेंट्रल मोमेंट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ योर सेकंड सेंट्रल मोमेंट. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? वी आर गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3,
वी आर गिवन बीटा 2 इज इक्वल टू 3. हमें फोर्थ सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट करना है विच इज़ म्यू 4 फाइंड आउट करना है. आई होप यू रिमेंबर दैट योर म्यू 2 is actually also your variance, right? Second central moment की value is your variance. अब हमें सिग्मा अगर 3 दिया हुआ है तो वेरियंस कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर विल इक्वल टू 9. सो कैन वी से दैट हेंस म्यू 2 इज इक्वल टू 9. सो यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन नाउ फाइंड आउट योर फोर्थ सेंट्रल मोमेंट. सो 3 इज इक्वल टू म्यू 4 divided by 9 square, which would imply that value of mu 4 is equal to 9 square 81 into 3, which is equal to 243. Next question, which of the following is an absolute measure of skewness? I hope you remember first of all skewness क्या होता है. Skewness means lack of symmetry. अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट टॉपिक 3 में था वेरिएंस का. वेरिएंस आपको बताता है कि वेरिएबिलिटी कितनी है, बट स्क्यूनेस आपको बताएगा रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. एनीवे, सो स्क्यूनेस के मेजर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. वन इज योर एब्सोल्यूट मेजर एंड द सेकंड इज योर रिलेटिव मेजर. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, जस्ट लाइक डिस्पर्जन में आपके मेजर्स को हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं. सिमिलरली स्क्यूनेस में भी दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर. वी नो एब्सोल्यूट मेजर है तो ऑब्वियसली आंसर यूनिट्स में आएगा, एंड हेंस अगर हमें कंपेयर करना है डिस्ट्रीब्यूशंस को वी कैन नॉट डू दैट यूजिंग द एब्सोल्यूट मेजर, इसीलिए रिलेटिव मेजर्स यूज़ होते हैं. सो व्हाट आर योर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कार्ल पियर्सन्स की बात करें, प्लीज़ सी दिस टेबल. कार्ल पियर्सन्स की बात करें, सो वी हैव द फर्स्ट मेजर एज मीन माइनस योर मोड और 3 इंटू मीन माइनस मीडियन. सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या है या फिर रिलेटिव मेजर क्या है? मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा और 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा. We also have Bowley's measures which are based on the quartiles. So relative and absolute measures क्या हैं? Absolute measure में we have Q3 minus median minus Q1. I hope you know कि median is also your second quartile. और इसी के corresponding relative measure क्या है? We have Q3 minus median minus Q1 divided by your Q3 minus Q1. Then we have Kelly's measure which is based on your percentiles, and at times we also have measures which are based on deciles. So these are your measures for skewness divided into absolute and relative. Out of these given options, the correct absolute measure of skewness is your mean minus median, which is your Pearson's measure. Then we have for a negatively skewed and Platy-Kurtic distribution. So first of all we know अगर negatively skewed है तो skewness तो negative होगी, that is option 2 या option 3 में से एक option correct होगा. Then Platy-Kurtic distribution is based on the peak or the kurtosis. अगर आपकी peak is also the peak for your is also the peak for your normal distribution, हम उसे mesokurtic distribution कहते हैं, which is your distribution B, this distribution. अब comparing other distributions with it, we say that अगर किसी distribution की peak इससे ज़्यादा है, that is your leptokurtic distribution, उससे flat है, that is your platykurtic distribution. So for leptokurtic beta 2 is greater than 3 and gamma 2 is greater than 0. For mesokurtic beta 2 is 3, gamma 2 is 0, and finally for platykurtic beta 2 is less than 3 and gamma 2 is less than 0. So option number 2, that is skewness less than 0 and kurtosis less than 3, is your
correct answer for your Platy-Kurtic distribution. Then next question, for a symmetric distribution we know कि मीन मीडियन और मोड अगर इक्वल होंगे देन वी हैव अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. और क्या केसेस हैं? वी हैव अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मीन मीडियन से ज़्यादा है और मीडियन मोड से ज़्यादा है, दैट इज़ मीन ग्रेटर दैन मीडियन ग्रेटर दैन मोड, वी हैव अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वी शुड हैव मोड ग्रेटर दैन मीडियन ग्रेटर दैन योर मीन वैल्यू. But one thing to note here is median will always lie between your mean value and your modal value. Next question, for a data set the following information is obtained. We are given the values for Q1, Q2 and Q3 and हमें Bowley's coefficient of skewness find out करना है. Coefficient पूछा है तो मतलब we have to find out Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1 divided by Q3 minus Q1. So we have this as equal to Q3 की value is 195 minus Q2 क्या हो जाएगा? 2 into Q2. So 2 into Q2 which is 142 and ये क्या हो जाएगा? Plus Q1. So we will have this as plus of 62 divided by Q3 which is 195 minus Q1 which is equal to 62. So you will have this as equal to minus of 27 divided by 133 which is equal to minus of 0.203. So there were two close options, minus 0.2 and minus 0.203. Therefore it is always advisable कि आप at least 2 या 3 decimal places तक आप आंसर फाइंड आउट करो. So the correct option is option number 3. Then this is a very important question. The first 4 moments of a distribution about a value 2 are 1, 2.5, 5.5 and 16. What is the fourth moment about 0? First of all, जितने भी relations हैं आपके पास, we have a relation between, or we say that we can find out your central moment using 1, your moments about any arbitrary point, and we can also find out your central moment using moments about origin or about 0. Similarly, आप central moment से moment about arbitrary point और central moment से moments about origin find out कर सकते हो. But as such we do not have a relationship between these two, which is moments about arbitrary point A and moments about origin. Since we do not have, so for this question what we will do is, first of all हम find out करेंगे your moments about arbitrary point which is 2, say moments which are central moments. So I'm just writing moments about A से आप central moment which is moments about mean find out करोगे, and using this you will find out your moment about origin or moment about 0. Clear? So this will be the procedure. So हमें ये वाला रिलेशन तो पता है कि अगर आर्बिट्ररी पॉइंट या फिर अज्यूम्ड मीन है कोई, उससे आप सेंट्रल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हो. एंड द सेकेंड रिलेशन आई विल टेल यू राइट नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड रिलेशन में वी हैव v1 which is your moment about 0. This is equal to x bar. Then we have v2 which is second moment about 0. This is equal to mu2 plus v1 square. Then we have your third moment about 0 v3
it is equal to mu3 plus 3 into v1 into v2 minus 2 into v1 cube. And finally fourth moment about 0, which we have to find out, v4 is equal to mu4 plus 4 into v3 v1 minus 6 into v2 v1 square plus 3 into v1 to the power 4. आई होप आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया है एंड सो ऑन, राइट. मोरोवर अब v2 फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे v1 की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी, v3 फाइंड आउट करना है तो v1 और v2 दोनों की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट योर वैल्यूज़ फॉर mu1 तो 0 है, mu2 क्या हो जाएगा, mu2 होगा एज इक्वल टू दिस. We are given mu1 dash as 1, then mu2 dash as 2.5, mu3 dash as 5.5 and mu4 dash as 16. So mu2 dash कितना given है 2.5 minus mu1 dash is equal to 1. So 2.5 minus 1 square, it is equal to 1.5. सिमिलरली mu3 की वैल्यू आएगी आपके पास एज इक्वल टू 0 एंड mu4 की वैल्यू आएगी एज इक्वल टू 6. टू सेव टाइम फॉर दिस वीडियो आई हैव जस्ट गिवन यू द आंसर्स. सो सिमिलरली v1 आएगा आपका x बार एंड इट इज़ इक्वल टू a विच इज़ योर आर्बिट्ररी पॉइंट और ऑल्सो योर अज्यूम्ड मीन प्लस mu1 डैश. सो a क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2, mu1 डैश कितना है, mu1 डैश इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू 3. देन v2 इज mu2 प्लस v1 स्क्वायर, सो वी हैव mu2 विच इज इक्वल टू 1.5 प्लस v1 स्क्वायर विच वी जस्ट फाउंड आउट इक्वल टू 3, सो दिस विल इक्वल टू 4.5. देन v3 क्या आएगा, v3 आएगा यहाँ से 40.5 एंड फाइनली जब आप v4 फाइंड आउट करोगे दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 168. सो आई होप you can solve all these parts and hence your correct answer will be option number 3 which is 168. अब एक related question है which you can do on your own. यहाँ पे we are given that arithmetic mean of a series is 22 and the first 4 central moments are given. We have to find out the first 4 moments about assumed mean 25 and about origin, and these are your correct answers. Next question, if for a group of 20 items summation x is equal to 1452, summation x square is equal to 144280 and mode is equal to 63.7, the Pearsonian coefficient of skewness is equal to. Again Pearson's coefficient of skewness find out करना है. So we know that it is equal to mean x bar minus mode upon sigma. Now the problem is कि आपको यहाँ पे mean की वैल्यू नहीं गिवन, आपको mode की वैल्यू गिवन है एंड अगैन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन नहीं है. बट यूजिंग दीज वैल्यूज़ हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मीन एक्स बार is equal to, we know from formula, summation x upon n. So this is equal to 1452 divided by 20, which comes out to be as equal to 72.6. Then we have your standard deviation sigma. सिग्मा के लिए या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर. सो समेशन एक्स स्क्वायर कितना गिवन है 144,280 डिवाइडेड बाय एन विच इज़ 20 माइनस समेशन एक्स कितना है
1452 divided by 20 whole square. So we have this as equal to 7214 minus, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5270.76 and hence your standard deviation, sorry, this is your formula for variance, sigma square will be equal to 1943.24. Once we have your sigma square, so we can find out your standard deviation, which is under root of this 1943.24, which is equal to 44.08. So mean आ गया आपके पास as equal to 72.6. आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है as equal to 44.08 and we will substitute these values. So 72.6 minus 63.7 divided by 44.08. So the correct answer will be 0.2019 or approximately 0.202. Option number 1 is your correct option. तो यहाँ पे तो इनफैक्ट अगर आपने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक भी आंसर फाइंड आउट किया होता, यू वुड हैव फाउंड आउट योर करेक्ट ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर 2. Then we have, if mean is greater than median is greater than mode, then the distribution is. Always remember, इन तीन वैल्यू से आप स्क्यूनेस की ही बात कर सकते हो. You cannot talk about kurtosis. So we know अगर mean is greater than median, greater than mode, then it is a positively skewed distribution. Then negatively skewed distribution में भी same question था. We know distribution negatively skewed होती है जब mode is greater than your mean value. Then we have positive skewness means that the frequencies in the distribution are spread. First of all, we know कि हम हिस्टोग्राम बनाते हैं and उससे frequency कर्व आता है. We know that अगर positively skewed distribution है, it will have a long tail. Long tail means जितनी frequencies हैं they are spread on the right side of the center of the curve. So let us assume कि ये center है, तो your frequencies are to the right side of the center of the curve. Left side होती तो हम कहते that it is a negatively skewed curve, and for this particular case we have a positively skewed curve. So that is all for your questions for 2023 paper. 2022 के क्वेश्चन पेपर से, एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो 2022 में आया था, दैट वाज इफ द मीन, मोड and the quartile deviation of a distribution is 2, 7 and 3 respectively, then Karl Pearson's coefficient of skewness is given by. So Karl Pearson's coefficient of skewness का formula होता है, we usually refer to it as SK. This is equal to x bar minus z upon sigma. Here x bar is your mean, z is the mode and sigma is the standard deviation. अब हमें दो चीज़ें तो गिवन है, दैट इज़ मीन एंड मोड इज़ गिवन. सो वी आर गिवन द मीन एज 2 एंड मोड इज़ गिवन एज 7. अब क्या रिक्वायरमेंट है सिग्मा की. अब सिग्मा की जगह दे हैव गिवन क्वार्टाइल डेविएशन. तो क्वार्टाइल डेविएशन और सिग्मा में, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन में, एक रिलेशन होता है विच वी हैव स्टडीड अर्लियर. सो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. तो इसकी वजह से दिस इम्प्लाइज दैट स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज सिग्मा इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ योर क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन इज गिवन एज इक्वल टू 3. देयरफॉर जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा है, दैट इज इक्वल टू 9/2. सो we'll have -5/9/2, that is equal to -10/9. Okay, so the final answer is -10/9. So Karl Pearson's coefficient of skewness, which is equal to x bar minus z upon sigma, is equal to -10/9.
Then next question is, if 25th, 50th and 70th percentile of a frequency distribution are 2, 3 and 4 respectively, then the distribution is what? So 25th, 50th and 75th percentile given है, which are also equal to your Q1 that is first quartile, Q2 second quartile and Q3 that is the third quartile. जिसकी वजह से if you remember we had something known as Bowley's coefficient of skewness, या फिर अगर coefficient भी ना देखें तो Bowley's का एक absolute measure था which was Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1. So if we solve for this, Q3, Q2 और Q1 की requirement है which are equal to 2, 3 and 4 respectively. Okay, so Q3 is 4 minus Q2 is 3 minus Q2 is 3 and Q1 is equal to 2. So this is equal to 1 minus 1 which is equal to 0. अगर coefficient of skewness या फिर absolute measure जो हमने अभी find out किया है that is equal to 0, that implies कि इधर we do not have skewness in the distribution. Skewness अगर नहीं है, it would imply that your distribution is symmetric. Correct? So in this particular case we have a symmetric distribution. अब अगर हम बात करें कि और क्या ऑप्शन था कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन या तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकती है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड हो सकती है. अगर हम पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करें, सो फॉर पॉजिटिव स्क्यूनेस यू विल हैव दिस Q3 माइनस m वुड बी ग्रेटर देन m माइनस Q1 और m क्या है? m है मीडियन विच इज़ योर सेकेंड क्वार्टाइल. अगर नेगेटिव स्क्यूनेस होती तो आपका जो डिस्टेंस है मीडियन और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच में वो ज़्यादा होता एज कंपेयर टू योर डिस्टेंस बिटवीन योर थर्ड क्वार्टाइल एंड द मीडियन. सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस. हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे इस डिस्टेंस के टर्म्स में या फिर डिफरेंस के टर्म में पूछ लें. ओके, सो लेट्स से नेक्स्ट टाइम दे कुड आस्क यू that if Q3 minus Q2 is greater than Q2 minus Q1 then ये कौन से टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है? So this is a positively skewed distribution. Right. So next question is, if for a data set third quartile and median are equal then Bowley's coefficient of skewness is. तो लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था बाउलीज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस. अगर हम बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें, राइटिंग इट एज SB, देन दिस इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1. अब गिवन क्या है? दैट द थर्ड क्वार्टाइल दैट इज Q3 एंड द मीडियन दैट इज Q2 ये दोनों इक्वल हैं. सो Q3 इज इक्वल टू Q2. तो जहाँ जहाँ Q3 है विल जस्ट राइट इट एज इक्वल टू Q2. सो हेयर Q3 दिस इज इक्वल टू Q2 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 की जगह Q2 माइनस Q1. तो दिस इज 0 and this is equal to minus of Q2 minus Q1 divided by Q2 minus Q1 which comes out to be as equal to minus 1. तो अगर you have to find out your Bowley's coefficient of skewness, it comes out as equal to minus 1. और अगर Bowley's coefficient of skewness की बात हो ही रही है then you should know that your Bowley's coefficient of skewness lies between minus 1 to plus 1. एंड बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो वी यूज योर quartiles there, that is the first, second and the third quartile for finding out this coefficient of skewness. Next question is, Carl Pearson's measure of relative skewness is defined as. relative की बात हो रही है, therefore we know कि कुछ न्यूमरेटर में भी होता है एंड कुछ डिनोमिनेटर में भी होता है. दैट इज वी हैव अ फ्रैक्शन
एंड एज यू कैन सी कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ रिलेटिव स्क्यूनेस अभी अभी हमने यूज किया था, विच वी वर राइटिंग एज एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा, that is mean minus mode upon standard deviation. Next question. The fourth central moment of a mesokurtic distribution is 243. Its standard deviation is. अगर आपको सेंट्रल मोमेंट दिख रहा है और आपको ये भी दिख रहा है कि कर्टोसिस की बात हो रही है, तो आप क्या यूज करोगे? यू विल यूज योर बीटा टू मेजर ऑफ कर्टोसिस, या फिर जैसे हम मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कहते थे. सो बीटा टू मेजर ऑफ कर्टोसिस क्या होता था? दिस वाज इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर. म्यू फोर इज फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, म्यू टू इज योर सेकेंड सेंट्रल मोमेंट. अगर मीसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो बीटा टू होता है दैट इज इक्वल टू थ्री. तो हमें ये किसके इक्वल दिया है? दिस इज इक्वल टू थ्री. नाउ अब देखते हैं कि क्या क्या गिवन है. हमें फोर्थ सेंट्रल मोमेंट गिवन है विच इज इक्वल टू 243 अपॉन म्यू टू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू थ्री. इसकी वजह से जो आपका म्यू टू का स्क्वायर आ जाएगा that will equal to 81, and this will imply that your second central moment is equal to 9. अगर आपको याद हो कि सेकेंड सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज योर वेरिएंस. वेरिएंस का एक फॉर्मूला याद है कि एक्स आई समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन. सो दैट इज योर सेकेंड सेंट्रल मोमेंट एज वेल. तो अगर हमारे पास वेरिएंस आ गया दैट इज सिग्मा स्क्वायर 9 के इक्वल आ गया, तो इसकी वजह से आपका सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू थ्री. तो करेक्ट आंसर इज थ्री. अब पॉइंट क्या है कि म्यू2 देख के एज इट इज आंसर 9 मार्क कर देते हैं इफ यू डू नॉट रीड द क्वेश्चन करेक्टली. म्यू2 9 है, करेक्ट. वेरिएंस 9 के इक्वल है, नॉट द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू थ्री. अब इसके साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं और कुछ चीज़ें. अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है दैट इज उसका जो पीक है वो ज़्यादा है आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उसमें बीटा टू इज ग्रेटर दैन थ्री एंड गामा टू कोएफिशिएंट इज ग्रेटर दैन जीरो. अगर मीसोकर्टिक है तो बीटा टू इज थ्री एंड गामा टू इज जीरो. एंड अगर प्लैटीकर्टिक है दैट इज फ्लैटर है, जिससे हम प्लैटी और फ्लैट से हम याद करते थे. सो बीटा टू इज लेस दैन थ्री एंड गामा टू इज लेस दैन जीरो इन दैट केस. Next question number 36. Let the first four central moments of a distribution be 0, minus 0.93, 0 and 2.53. Then the distribution is what? So हमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी ही होती है और हमें सेंट्रल मोमेंट्स गिवन है, ओके, तो सेंट्रल मोमेंट्स को यूज़ करके हम डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में बात कर सकते हैं. हाउ? बाय यूजिंग द बीटा कोएफिशिएंट्स. बीटा वन हम यूज करते हैं स्क्यूनेस के लिए, जो होता है एज इक्वल टू म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, टू थ्री एंड थ्री टू. ओके, सो म्यू थ्री की बात करें तो वो जीरो है, देयरफॉर बीटा वन इज जीरो, मतलब स्क्यूनेस नहीं है. और अगर स्क्यूनेस नहीं है देन योर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. सेकेंड, हमें कर्टोसिस की भी बात करनी है तो हम बीटा टू कोएफिशिएंट यूज करते हैं. बीटा टू इज इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर. म्यू फोर इज गिवन एज 2.53 अपॉन म्यू टू इज माइनस 0.93 का स्क्वायर. सो दिस विल बी 2.53 अपॉन 0.8649 which is equal to 2.935. ओके, एंड अगर हमारे पास बीटा टू लेस दैन थ्री आया है दैट मीन्स कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लैटीकर्टिक. अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था तो देयर वी हैड सीन कि बीटा टू अगर लेस दैन थ्री होता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लैटीकर्टिक. सो फाइनल आंसर इज सिमेट्रिक प्लस प्लैटीकर्टिक. दैट इज ऑप्शन नंबर वन.
Next question, question number 38. If the fourth central moment of a frequency distribution is 11 and all of its odd raw moments are equal to 0, then its fourth raw moment is equal to what? रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट में हमेशा ही आपसे रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देयरफॉर ये जो लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन रॉ मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट, ये दोबारा समराइज कर दिए हैं. म्यूज विल रिप्रेजेंट योर सेंट्रल मोमेंट, एंड अगर हम म्यू डैश की बात कर रहे हैं, दैट वुड रिप्रेजेंट योर रॉ मोमेंट्स. एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम वी भी मेंशन करते हैं, दैट इज योर मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट. ओके, सो दोनों ही केसेस में यही सेम रिलेशन रहता है. म्यू डैश की जगह आप वी लिख सकते हो, बट द रिलेशन रिमेन्स द सेम इन बोथ द केसेस. सो आपको ये 4 रिलेशंस याद होने चाहिए. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा है कि फोर्थ रॉ मोमेंट किसके इक्वल होगा, और हमें फोर्थ सेंट्रल मोमेंट तक दिया हुआ है. अगर फोर्थ सेंट्रल मोमेंट दिया हुआ है तो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट को ही यूज करते हैं. सो हम क्या यूज करेंगे, ये फोर्थ वाला रिलेशन. फोर्थ रिलेशन क्या है, म्यू फोर इज इक्वल टू म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश स्क्वायर माइनस 3 इंटू म्यू वन डैश टू द पावर 4. क्या क्या गिवन है, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट गिवन है 11 के इक्वल. हमें म्यू फोर डैश फाइंड आउट करना है, माइनस 4 इंटू ऑड रॉ मोमेंट्स आर 0, तो म्यू वन डैश इज इक्वल टू म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू म्यू टू डैश इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0. तो ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट एंड ये टर्म कैंसिल आउट हो गई. दिस वुड इम्प्लाई कि आपका जो म्यू फोर डैश है दैट इज फोर्थ रॉ मोमेंट है, दिस इज इक्वल टू 11. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज इक्वल टू 11. सो योर फोर्थ रॉ मोमेंट इज इक्वल टू 11. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, if mu r dash and mu r respectively denote rth order moment about origin and mean, that is same जो अभी हमने डिस्कस किया था, then कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट. और इसमें भी फोर्थ सेंट्रल मोमेंट की बात हुई है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. अब आप इनको याद कैसे रखोगे, ऑब्वियसली आपकी अपनी ट्रिक्स हो सकती हैं. फर्स्ट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट होती है दैट इज इक्वल टू 0. वो 0 क्यों होती है, बिकॉज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन होती है फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट. सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन 0 के इक्वल होता है, देयरफॉर योर फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज 0. इसे याद नहीं रखना, बाकी 3 रिलेशंस याद रखने हैं. सो म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर. 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा. म्यू थ्री की बात करें तो म्यू थ्री भी स्टार्ट होगा म्यू थ्री डैश से, माइनस 3 इंटू म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस 2 इंटू म्यू वन डैश का क्यूब. 3 है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, म्यू फोर है तो लास्ट में 4 हो जाएगा, देन स्क्वायर होगा. इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो. ओके, सो माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, माइनस प्लस माइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन is regarding for a distribution. The first 4 moments about origin are minus 1.3, 15, minus 26 and 102. The third moment about mean is, तो हमें ये रिलेशन यूज करना है दैट इज म्यू थ्री. म्यू थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. म्यू थ्री की वैल्यू इज इक्वल टू म्यू थ्री डैश. म्यू थ्री डैश क्या है, दिस इज गिवन एज माइनस 26. minus 3 into mu 2 dash is 15, mu 1 dash is minus 1.3 plus 2 into mu 1 dash that is minus 1.3 का cube. So this comes out to be as equal to minus 26 plus
58.5 minus 4.394, which is equal to 28.106. So the correct answer is 28.106, and यहाँ पे 1 decimal place की बात हुई है, so the final answer will be 28.1. नेक्स्ट अगेन इसी रिलेशन पे एक बेस्ड क्वेश्चन आया है. इफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स आर 2, 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, देन फोर्थ सेंट्रल मोमेंट इज व्हाट. तो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 इंटू म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 इंटू म्यू 1 डैश टू द पावर 4. म्यू 4 डैश क्या है 6, माइनस 4 इंटू म्यू 3 डैश क्या है 5, म्यू 1 डैश क्या है 2, प्लस 6 इंटू म्यू 2 डैश क्या है 4, म्यू 1 डैश स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, माइनस 3 इंटू म्यू 1 डैश विच इज 2 टू द पावर 4. तो ये हो जाएगा 6 माइनस 40 प्लस 96 माइनस 48, जिससे आंसर आएगा एज इक्वल टू 14. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज इक्वल टू 14. तो ये वाला जो रिलेशन है ये या तो डायरेक्टली आ सकता है, दे कैन आस्क यू कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, या फिर जैसे अभी फोर्थ सेंट्रल मोमेंट का आया हो सकता है थर्ड सेंट्रल मोमेंट के लिए पूछ लें, या फिर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ऑन दिस रिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है. अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो स्क्यूनेस 0 होगी. ओके, बट कर्टोसिस एज सच हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं कि उसका कर्टोसिस क्या होगा. हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे आंसर वुड हैव बीन कि उसकी स्क्यूनेस भी नहीं होती बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है एंड कर्टोसिस उसका इक्वल टू 3 होता है. Okay, when you have a normal distribution. Otherwise, for this particular question, the correct answer will be skewness is equal to 0. Next, question number 78. The range of Karl Pearson's coefficient of skewness is -3 to +3. Okay, Karl Pearson's coefficient of skewness क्या होता है अभी देखा था, that is equal to x bar minus z upon sigma. कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हैं दैट इट लाइज बिटवीन -3 टू +3. सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन योर मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कि अगर हम एब्सोल्यूट स्क्यूनेस की बात करें, सो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस हेयर इज इक्वल टू मीन माइनस मोड. ओके, और अगर बाउलीज कोएफिशिएंट की बात करें तो बाउलीज कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस आ जाता है, वहाँ पे इट लाइज बिटवीन -1 टू +1. इट डिपेंड्स ऑन योर क्वार्टाइल्स. एब्सोल्यूट स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1. ओके, दिस इज फॉर योर बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. So correct answer is that SK lies between -3 to +3. Next question, let MMD, MO, Q1 and Q3 denote mean, median, mode, first and third quartile. Which of the following is correct for positively skewed distribution? So positively skewed distribution के लिए correct क्या है, that your Q1 plus Q3 is greater than 2 into MD. अगर हम MD को रिप्लेस कर दें with Q2 then ये हो जाएगा which implies that Q1 plus Q3 is greater than Q2 plus Q2, which implies that Q3 minus Q2 is greater than Q2 minus Q1. तो एब्सोल्यूट मेजर जो होता है बाउलीज कोएफिशिएंट का, उसके अकॉर्डिंगली ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट.
अदरवाइज बाकी सब केसेस में अगर हम देखें तो इट डज नॉट डिफाइन योर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. Next, the range of Pearson's coefficient of skewness, again -3 to +3. Okay, so that was all for your 2022 question paper. अब बात करते हैं, I hope we have not missed, yeah. अब बात करते हैं about your questions for 2021. 2021 के पेपर में अगेन कुछ सिमिलर क्वेश्चंस थे बट कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी थे. ओके, सो डिफरेंट क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना, सिमिलर क्वेश्चंस अभी तक आई होप आपको पता चल गए होंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ देम इज नॉट अ रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस. तो हमारे पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर. रिलेटिव मेजर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें आपके पास एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म होगी. ओके, एंड एब्सोल्यूट मेजर में आपके पास कोई भी डिनोमिनेटर टर्म नहीं होगी. अगर आप ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट आपका कैलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है. सेकंड अगेन आपका कैलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है. फर्स्ट वाला परसेंटाइल के बेसिस पे है, सेकंड वाला डिसाइल्स के बेसिस पे है. एंड थर्ड आपका बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है. फोर्थ आपका कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस है एंड दैट इज एन एब्सोल्यूट मेजर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था इन 2022 पेपर. अगर इसे ही हम मीन माइनस मोड को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते तो दिस वुड हैव बीन अ कोएफिशिएंट दैट इज, अब ये चेंज हो जाता एब्सोल्यूट से रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस में. Next question, the grouped data for the observations are this. The population skewness is equal to what? Population skewness के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे your beta 1 coefficient. Beta 1 coefficient किसके इक्वल था? So skewness अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम beta 1 मेजर यूज करते हैं which is equal to mu3 square अपॉन mu2 क्यूब, जहाँ पे आपका mu2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n एंड mu3 इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार क्यूब डिवाइडेड बाय n. हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं एंड उसके कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं. सो क्लास इंटरवल्स आर 1 से 3, 3 से 5 and 5 to 7. Corresponding frequencies are 2, 1 and 2. तो अब हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? x बार रिक्वायर्ड है एंड उसके बाद डेविएशंस के स्क्वायर और डेविएशन का क्यूब रिक्वायर्ड है. तो फर्स्ट इसको xi लिख लेते हैं. क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो हम xi कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2. सो इसका xi इज इक्वल टू 2, इधर 4 एंड इधर 6. अब xi fi निकालेंगे. क्यों? बिकॉज x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. सो दिस इज इक्वल टू 4. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगेन 4 एंड 12. तो इसका सम आया एज इक्वल टू 20. fi का सम आ रहा है एज इक्वल टू 5. सो योर x बार इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 4. x बार आ गया तो अब हम xi माइनस x बार डेविएशन फाइंड आउट करेंगे. तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2. 4 माइनस 4 0. 6 माइनस 4 इज 2. अब इन डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे एंड डेविएशन का क्यूब करेंगे ताकि हमारे पास सेकेंड सेंट्रल मोमेंट आ जाए एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट आ जाए. तो स्क्वायर किया तो दिस इज इक्वल टू 4, 0, 4. क्यूब किया तो माइनस 2 का क्यूब इज माइनस 8, 0 एंड 8. सम करने पे हमारे पास दिस कम्स आउट टू बी 8 एंड दिस कम्स आउट टू बी एज इक्वल टू 0. तो जो न्यूमरेटर है
या फिर उससे भी पहले अगर हम बात करें μ3 की, तो समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार होल क्यूब आया एज इक्वल टू 0। अब ये जो μ3 है वो न्यूमरेटर में है, सो दिस कम्स आउट टू बी एज इक्वल टू 0। और अगर बीटा 1 0 है, दैट मीन्स कि स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं है एंड हेंस द पॉपुलेशन स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो प्लीज फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर। Next question, the population kurtosis of the observations is 1.7414, then the population kurtosis of the next observation is what? अगर आप next observation को देखो तो they are just the half of the earlier observation। तो अगर हम इसे xi लिखें, इसे xi dash लिखें, तो xi dash is 1/2 of your xi। अब हमें कर्टोसिस गिवन है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का, सेकंड ऑब्जर्वेशन का कर्टोसिस फाइंड आउट करना है। एक मेथड तो आपके पास ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड में आपको ये पता है कि कर्टोसिस के लिए बीटा 2 कोएफिशिएंट यूज होता है विच इज इक्वल टू योर μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। तो μ4 और μ2 स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे, जहाँ पे आप अगर μ4 या लेट्स से फर्स्ट μ2 की बात करें, सो दिस इज इक्वल टू समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, और μ4 इज इक्वल टू समेशन xi माइनस एक्स बार टू द पावर 4 अपॉन n। तो x बार निकालोगे, इन xi में से x बार माइनस करोगे, डेविएशन फाइंड आउट करोगे, डेविएशन का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, देन डेविएशन टू द पावर 4 फाइंड आउट करोगे, एंड ट्रेडिशनल मेथड से, पूरे लॉन्ग मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, हम बेसिक्स पे जाते हैं। अभी हमने क्या देखा कि μ2 और μ4 क्या होते हैं। तो अगर हम μ2 अब न्यू ऑब्जर्वेशंस के लिए ग्रीन से डिनोट करें, दिस विल इक्वल टू व्हाट, समेशन xi डैश माइनस एक्स बार डैश होल स्क्वायर अपॉन n, and similarly mu4 is summation xi dash minus x bar to the power 4 upon n। अगर xi dash is 1/2 of xi, that would imply कि जो इसका मीन भी होगा that will also equal to 1/2 of x bar। So new mean is 1/2 of the old mean। तो इसको अब हम रिप्लेस करते हैं। So this is summation of 1/2 xi minus 1/2 x bar होल स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ से आपका 1/2 कॉमन हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, आया 1/4, एंड ब्रैकेट में अब क्या समेशन में क्या बचेगा, समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, जो क्या था μ2। तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ μ2। और अगर μ4 की बात करें तो अब यहाँ से दिस विल इक्वल टू 1/2 xi माइनस 1/2 x बार टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n। अब ये जो 1/2 है दिस विल बी टू द पावर 4, ओके, इनटू योर μ4, राइट। सो अब हमें अगर बीटा 2 फाइंड आउट करना है, सो देयरफॉर योर बीटा 2 is equal to μ4 which is नया वाला μ4 which is 1/2 to the power 4, 1/2 to the power 4 is 1/16 μ4 upon μ2 square which is 1/4 μ2 इसका square। So this will be 1/16 μ4 upon 1/16 μ2 square, जिसकी वजह से दिस विल इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। और μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन एज इक्वल टू 1.7414। तो बीटा 2 किसके इक्वल आया, 1.7414
4k इक्वल विच इज ऑप्शन नंबर 3। सो बेसिकली इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि अगर आपके पास कोई सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और आप उनको डिवाइड कर देते हो या फिर उनका स्केल चेंज कर देते हो, स्केल चेंज करना मतलब कुछ या तो मल्टीप्लाई किया या कुछ डिवाइड किया, तो स्केल चेंज करने पे जो आपका पॉपुलेशन कर्टोसिस है दैट डज नॉट चेंज। ओके, सो कर्टोसिस पे चेंज ऑफ स्केल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। दूसरा मेथड क्या था आपका ट्रेडिशनल मेथड, आप μ2 μ4 फाइंड आउट करोगे और उसके अकॉर्डिंगली β2 फाइंड आउट कर लोगे। अगर उससे आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट 1.7414 नहीं आएगा आंसर, अराउंड 1.7 आंसर ज़रूर आ जाएगा बट नॉट द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो इट इज़ बेटर, इतना करने से बेटर है कि आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करो। वहाँ पे नहीं याद आ रहा चेंज ऑफ स्केल से क्या होता है, तो आप इस टाइप से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एंड दैट विल बी बेटर फॉर यू। उससे आपको ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि चेंज ऑफ स्केल से क्या इम्पैक्ट आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ द सेकंड एंड द थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन are 8 and 18 respectively, and the third moment about mean is -14, then the first moment about origin is। आपको ये दिख गया कि moment about origin given है and moment about mean given है। अब moment about mean वो भी थर्ड मोमेंट गिवन है, तो आपको एक फॉर्मूला याद है या फिर रिलेशन याद है μ3 का, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करोगे। सो μ3 क्या होता है, μ3 डैश माइनस 3 इंटू μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 इंटू μ1 डैश का क्यूब। μ3 दैट इज द थर्ड सेंट्रल मोमेंट, दिस इज इक्वल टू -14, μ3 डैश is given as 18 minus 3 into second moment about origin 8, first moment about origin हमें find out करना है plus 2 into first moment about origin का cube, तो this will be -14 is equal to, या -14 -18 को अगर हम वहाँ पे ले जाएं तो -32 is equal to -24 μ1 plus 2 μ1 का क्यूब। Further this will equal to 16 is equal to 12 μ1 plus μ1 क्यूब। तो अगर आप ऑप्शंस में से देखो तो अगर हम 1 पुट करें नेट से μ1 डैश को तो 12 प्लस 1 हो जाएगा विच इज़ 13, तो 16 के इक्वल नहीं आया। तो अगर हम μ1 डैश को 2 के इक्वल पुट करेंगे तभी आंसर आ पाएगा विच इज़ इक्वल टू 16। ओके, सो ओके यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज हमने इनको डिवाइड किया है -2 से। सो अगर 2 पुट करें तो 12 इंटू 2 -2 का क्यूब विच इज़ 24 minus 8 which is 16, तो therefore we can say that μ1 dash, that is the first moment about origin, is equal to 2। तो अगर आपको ये रिलेशन याद होंगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ से एज इट इज स्ट्रेट अवे आपका 2 मार्क्स विल बी लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन says again regarding the population skewness, classes given है, frequencies given है। फिर से सॉल्व करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। सो क्लास इंटरवल्स क्या है, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 8, जिसकी एंड फ्रीक्वेंसीज क्या है 2, 1 एंड 2, जिसकी वजह से आपके XI क्या हो जाएंगे 3, 5 एंड 7, XI FI फाइंड आउट करेंगे 6, 5 एंड 14 एंड इनका सम आ जाएगा एज इक्वल टू 25। देयरफॉर योर मीन x bar will equal to summation FI XI upon summation FI, so 25 upon 5 which is equal to 5।
अब xi में से x बार माइनस करेंगे ताकि डेविएशन आ जाए, तो 3 माइनस 5 कितना होगा, -2, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2। अब स्क्यूनेस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला हमें पता है, हम बीटा 1 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बीटा 1 इज म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब, दैट इज 2332। सो xi माइनस x बार का स्क्वायर एंड xi माइनस x बार का क्यूब, स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर इज 4, 0 स्क्वायर इज 0, 2 स्क्वायर इज 4। xi माइनस x बार होल क्यूब करेंगे तो -2 का क्यूब इज -8, 0 क्यूब इज 0 एंड 2 का क्यूब इज 8। तो समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल क्यूब आएगा एज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूमरेटर 0 हो जाएगा and hence your population skewness is equal to 0. Next question, if the first, fifth and the ninth decile of a frequency distribution are 3, 10 and 16 respectively, then Kelly's coefficient of skewness is. Kelly's ने जो coefficient of skewness दिए थे वो deciles और percentiles के terms में दिए। इस current question में आपके पास deciles given है, that is first decile D1 given है as 3, फिफ्थ decile D5 given है as 10 and ninth decile is given as 16। तो कैलीज के अगर हम फॉर्मूला में लगाएं तो दिस विल इक्वल टू 16 प्लस 3 माइनस 2 इंटू D5, तो 2 इंटू 10 विच इज 20 अपॉन D9 विच इज 16 माइनस D1 विच इज 3। तो यहाँ से हो गया ये 19 माइनस 20 अपॉन 13 which is -1 upon 13 is the correct answer. Kelly's ने जो दूसरा coefficient of skewness दिया था, this is written in blue, which was based on your percentiles. तो अगर in a way आप देखो तो आपका 9th decile 90th percentile के इक्वल होता है, फर्स्ट decile आपका 10th percentile के इक्वल होता है एंड 50th percentile आपका 5th decile के इक्वल होता है। तो आपको एक भी इनमें से फॉर्मूला याद होगा, सो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि आप इस केस में परसेंटाइल यूज करोगे या डिसाइल यूज करोगे या फिर उनको कन्वर्ट करके भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। रिपीटिंग अगेन, डिसाइल्स आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड परसेंटाइल्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ अ गिवन डेटा सेट इज 12, the sum of frequencies on both sides of mode are 16. Then in this case, the answer would be that skewness does not exist. That is, option number 4 will be the correct option. Then next question, the first, second and the third moment about origin are 2, 8 and 18 respectively. Then the third moment about mean is equal to what? थर्ड मोमेंट अबाउट मीन निकालनी है, दैट इज थर्ड सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट करनी है। सो यू विल हैव μ3 इज इक्वल टू दिस। हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन गिवन है, तो हमें क्या गिवन है, μ1 डैश गिवन है, μ2 डैश गिवन है एंड μ3 डैश गिवन है। ये तीनों ही चीज रिक्वायर्ड है फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 3 इंटू 8 into 2 plus 2 into 2 का क्यूब। So 18 minus 24 into 2 which is 48 plus 2 into 8 which is 16. So this is hence equal to 18 plus 16 which is 24, wait, 34 minus 48 which is minus of 14. So the correct answer is minus 14, which is option number 2. Next question, if the first, second and the third moment about origin are 1, 6 and 15 respectively, then Karl Pearson's beta coefficient of skewness beta 1 is equal to what? तो beta 1 is equal to μ3 square upon μ2 cube। हमें जो गिवन है वो है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ना कि सेंट्रल मोमेंट्स।
तो ये mu1 डैश गिवन है, ये mu2 डैश गिवन है और ये mu3 डैश गिवन है। तो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट्स आए हैं, फर्स्ट आपका बीटा 1 कोएफिशिएंट और सेकंड आपका रिलेशन बिटवीन द मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड योर सेंट्रल मोमेंट्स। तो पहले हम mu2 और mu3 फाइंड आउट करेंगे, तभी हम बीटा 1 में इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो mu2 क्या आएगा, mu2 विल इज इक्वल टू 6 माइनस 1 स्क्वायर विच इज 6 माइनस 1 5। mu3 क्या आएगा, दिस विल बी 15 माइनस 3 इंटू 6 into 1 plus 2 into 1 cube. So this will be 15 minus 18 plus 2. So 17 minus 18 which is minus 1. अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, so बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा 1 will equal to mu3 का स्क्वायर which is minus 1 का स्क्वायर divided by second central moment which is mu2 का cube which is 5 cube. So the final answer will be 1 upon 125, option number 1. Although option अगर आप देखोगे तो as such options के accordingly आपको पता नहीं चलेगा, अगर गलती करोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका आंसर इस ऑप्शन में नहीं है, तो इट इज़ बेटर। बट ऑन द अदर हैंड अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा भी ट्रिकी इसको करना होगा, दे विल गिव द फाइनल आंसर एज 25 अपॉन 24, जो कि आएगा जब आप mu3 डैश स्क्वायर अपॉन mu2 डैश क्यूब से इसको फाइंड आउट करने की ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट स्क्यूनेस की, ओके, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस क्या होता है, हम मीन में से मोड को माइनस करते हैं या फिर हम 3 इंटू मीन माइनस मीडियन फाइंड आउट करते हैं। सेकंड वाला कैसे आया, सेकंड वाला आया आपके एम्पेरिकल रिलेशन में से, जो मीन मीडियन और मोड के बीच में एक रिलेशन होता है which is mode is equal to 3 median minus 2 mean. Anyway, so अगर absolute skewness की बात करें तो 3 into mean कितना है, mean is 12, median कितना है 21. So 3 into minus 9 which is minus 27, negative value आ रही है, therefore it is negatively skewed. और अदरवाइज अगर आपको नहीं याद रहता तो आप मीन माइनस मोड से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, एम्पेरिकल रिलेशन यूज करके आप इसका मोड फाइंड आउट कर सकते हो। सो मोड क्या आएगा, मोड इस केस में आएगा एज इक्वल टू 3 मीडियन विच इज 63 माइनस ऑफ 24. सो 63 माइनस ऑफ 24 विल बी इक्वल टू 39. ओके, सो अगर ये 39 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो मीन है एक्स बार इट इज 12, आपका जो मीडियन है दैट इज 21 एंड जो आपका मोड आया है दैट इज 39. सो योर मीन इज लेस दैन योर मीडियन इज लेस दैन योर मोड, तो ऑब्वियसली इस केस में आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इफ द मीन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट। अब आपके पास मीन एंड मोड गिवन है, तो मीन माइनस मोड करोगे तो मीन माइनस मोड क्या हो जाएगा, 32 माइनस 21 which will equal to 11 greater than 0 है, therefore it is positively skewed. नहीं याद रहता है तो आप अब क्या कर सकते हो, अब आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये 64 हो जाएगा, दिस विल हेंस इज इक्वल टू 85 इज इक्वल टू 3 मीडियन, जिससे मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 85 by 3 which is equal to 3 2s are 6
3 8 24, 3 3 9, सो 28.3 के अराउंड आपके पास मीडियन वैल्यू आ जाएगी। मीडियन हमेशा मीन और मोड के बीच में लाया करेगा। अगर मीन 32 है, it is greater than your median, it is greater than your mode. So mean greater than median greater than mode, which implies कि आपकी distribution positively skewed distribution है। Okay. Next question, identify from the following the moment used as a measure of skewness. तो हम इन जनरल ये कहते हैं कि फर्स्ट मोमेंट आपके मीन को डिफाइन करती है, दैट इज योर सेंट्रल लोकेशन। सेकेंड मोमेंट आपके वेरिएंस के बारे में बताती है, वेरिएंस दैट इज योर डिस्पर्जन कह लो इसको, या फिर स्प्रेड कह लो। थर्ड मोमेंट आपके स्क्यूनेस के बारे में बात करती है, दैट इज योर लैक ऑफ सिमेट्री या फिर एसिमेट्री। एंड फोर्थ मोमेंट टॉक्स अबाउट कर्टोसिस। और कर्टोसिस क्या होता है? कर्टोसिस इज योर पीक्डनेस का मेजर या आउटलायर्स का मेजर या फिर टेल्डनेस का मेजर, राइट? तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मोमेंट डिस्क्राइब दीज मेजर्स। तो हमसे स्क्यूनेस की बात की थी, तो थर्ड मोमेंट आपके स्क्यूनेस को डिस्क्राइब करती है। Next, if the population skewness of these observations is 0.233, then population skewness of these observations is what? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इनको as it is 2 times कर दिया है, multiply by 2, एंड हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास स्क्यूनेस है और ऑब्जर्वेशंस का चेंज ऑफ स्केल होता है, देन स्क्यूनेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। तो इन नई ऑब्जर्वेशंस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, स्क्यूनेस वुड रिमेन द सेम, और इनकी स्क्यूनेस भी क्या होगी? 0.233। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको फिर भी ऑब्जर्वेशंस देके क्वेश्चन पूछा है, और पूछा है कि अब स्क्यूनेस क्या होगी। नेक्स्ट टाइम मे बी दे कैन आस्क कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल on the observations, what is the impact of change of scale on skewness, then your answer would be that skewness पे कोई भी impact नहीं आता change of scale का। and as a homework question what you can do is कर्टोसिस पे भी चेक कर लो कि कर्टोसिस पे कोई impact आता है या फिर नहीं आता। Alright, so कर्टोसिस वाला question was there as the 20th question, skewness का question नहीं था। सो एक बार I'll just tell you कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बीटा 1 है, बीटा 1 किसके इक्वल होता है? μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब के इक्वल। अगर आपने अब चेंज ऑफ स्केल किया है तो μ2 और μ4 पे क्या इम्पैक्ट आएगा? μ2 और μ4 पे ये इम्पैक्ट आएगा कि आपने 2 टाइम्स किया है, तो μ2 प्राइम क्या होगा? एक्स आई डैश माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। 2 टाइम्स किया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू μ2। सिमिलरली μ4 की बात करें, सॉरी μ3 की बात करें, तो दिस विल बी एक्स आई माइनस एक्स बार होल क्यूब, यहाँ पे डैशेस अपॉन n। तो यहाँ पे 2 टाइम्स किया है तो 2 का क्यूब हो जाएगा इनटू μ3। तो बीटा 1 अब क्या हो जाएगा? μ3 डैश का स्क्वायर दैट इज 2 to the power 3 का स्क्वायर दैट इज 2 to the power 6 इनटू μ3 डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब दैट इज 2 स्क्वायर का क्यूब 2 to the power 6 μ2 का क्यूब। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हेंस स्क्यूनेस पे भी चेंज ऑफ स्केल का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो स्क्यूनेस ऑल्सो रिमेन्स इज इक्वल टू 0.233। Okay, and I think the last question for 2021 paper, if the first, second and the third moment about origin are this, then Carl Pearson's gamma coefficient of skewness is। तो कार्ल पियर्सन्स का बीटा कोएफिशिएंट भी पूछ लिया एक बार, विच वॉज इक्वल टू μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब,
एंड गामा कोएफिशिएंट पूछा है इस बार। गामा कोएफिशिएंट में क्या होता है, इट इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ योर बीटा कोएफिशिएंट विच इज μ3 अपॉन μ2 का क्यूब अंडर रूट। तो हमें अगेन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन गिवन है, तो हमें μ1 डैश गिवन है, μ2 डैश गिवन है और μ3 डैश गिवन है। हमें μ2 और μ3 चाहिए, दैट इज सेंट्रल मोमेंट चाहिए। तो μ2 फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 8 माइनस 4 विच इज 4। μ3 फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू 8 24 माइनस 2 विच इज 48 प्लस 2 इंटू 8 विच इज 16। तो दिस इज 30 माइनस 48 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18। सब्स्टिट्यूट करते हैं इनकी वैल्यूज, μ3 आया माइनस 18, μ2 का क्यूब, μ2 क्या था 4, इसका क्यूब दैट इज माइनस 18 अंडर रूट 64 which is minus 18 upon 8 which is minus 9 upon 4 which comes out to be as minus 2.25. Option number 3 is the correct option. Okay, so those were the questions for 2021 paper. अब डिस्कस करते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। एंड आई होप अभी तक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, एंड आपको ये पता है कि रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आपको ये पता है कि इधर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, इन सब के फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए। ओके, एंड इन केस आपको नहीं पता है देन इट विल बी अ ट्रबलसम टॉपिक फॉर यू, अदरवाइज ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी है। Next question is for the given distribution of female weight in a colony, the quartiles are this, the value of Bowley's coefficient of skewness is. So Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1 divided by Q3 minus Q1. Q3 क्या है 62.6 और इसको हम और क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर में Q3 माइनस या प्लस Q1 माइनस 2Q2। सो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, प्लस 60.1 माइनस 2 इंटू 61.3 डिवाइडेड बाय Q3 विच इज 62.6 माइनस Q1 विच इज 60.1। तो इधर से यू विल हैव योर Bowley's coefficient of skewness being equal to 0.1 divided by 2.5 which is equal to 0.04. Option number 2 is the correct answer. In the absence of skewness, the coefficient of skewness by Karl Pearson, Bowley's and Kelly's are what? चाहे वो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो, चाहे वो बाउलीज हो या फिर केलीज हो, ओके, ऑल ऑफ देम विल इक्वल टू 0। जब 0 होंगे तभी ये इम्प्लाई करेंगे दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस या फिर देयर इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑप्शन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 33, फॉर द डेटा ऑन अर्ली अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, द रॉ मोमेंट्स अबाउट some arbitrary point A is equal to 12 is given. The moment mu3 about the actual mean is. अभी अभी हमने रिलेशन देखा था, तो सेंट्रल मोमेंट mu3 is equal to mu3 dash minus 3 into mu2 dash mu1 dash plus 2 into mu1 dash का क्यूब। As it is question में given है mu3 dash is 546
minus 3 into mu2 dash is 94, mu1 dash is minus 3 plus 2 into minus 3 का cube. So this is equal to 546 plus 846 minus 54, which is equal to 1338. Option number 4 is the correct option. Then next question, if the mean, median and mode and the standard deviation are given, Karl Pearson's first coefficient of skewness is equal to. Karl Pearson's coefficient of skewness की वैल्यू होती है x बार माइनस z अपॉन सिग्मा. x बार गिवन है हमें 61.4. z that is mode is given as 61.13. Sigma that is standard deviation is 1.76. तो x बार की वैल्यू पुट करेंगे 61.4, z की वैल्यू 61.13 अपॉन सिग्मा विच इज 1.76. तो यहाँ से इट विल बी इक्वल टू 61.4 minus 0.13, which will equal to 0.27 divided by 1.76, which will come out to be 0.153. Option number 4 is the correct option. Next, the following measures were computed for a non-symmetrical frequency distribution. Mean given है, coefficient of variation given है, percentage के terms में है, and Karl Pearson's coefficient of skewness is given. The value of mode is. तो अगर हमें मोड की बात करनी है तो हमें पहले कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में मोड की वैल्यू गिवन होती है. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा. क्या क्या गिवन है हमें, मीन गिवन है, राइट, 50 माइनस मोड हमें कैलकुलेट करना है, सिग्मा हमें नहीं गिवन है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन है माइनस 0.25. सिग्मा कहाँ से आएगा, z तो एज इट इज फाइंड आउट करना है. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है विच इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100, और 100 क्यों, बिकॉज वो परसेंटेज टर्म्स में गिवन है. सो 35 इज इक्वल टू सिग्मा फाइंड आउट करना है x बार 50 इंटू 100. तो इससे वी विल हैव सिग्मा एज इक्वल टू 35 अपॉन 2. तो अब यहाँ पे वापस आते हैं, तो 50 माइनस z अपॉन 35 बाई 2 is equal to minus 0.25, which implies 50 minus z is minus 0.25 into 35 divided by 2. So from here you will have this implies z is equal to 50 plus 35 by 8, which is equal to 435 by 8. Okay, so answer yes, option number 4, which is 435 upon 8 is the value of your mode. तो यहाँ पे हमने टॉपिक 3 के कॉन्सेप्ट यूज करे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन which was given in percentage terms, and topic 4 के कॉन्सेप्ट यूज करे, that is your Karl Pearson's coefficient of skewness. Next question is regarding your Bowley's coefficient of skewness. As it is आपको absolute measure के लिए पूछा है, सॉरी coefficient of skewness की बात करी है, तो coefficient of skewness के लिए हमें क्या गिवन है, that फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, या फिर Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1. सो हमें ये गिवन है दैट योर न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव एज इट इज होता है, सो योर बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन,
is regarding your Carl Pearson's coefficient of skewness. Again, लास्ट अभी जो क्वेश्चन देखा था उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है. सो इट इज एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा. क्या क्या गिवन है? मोड गिवन है, स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है. ओके, तो एक्स बार इज नॉट गिवन, मोड गिवन है एज 4, स्टैंडर्ड एविएशन इज गिवन बाय 9. अब हमें अगेन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, परसेंटेज टर्म्स में नहीं है, विच इज इक्वल टू 4.4, विच इज सिग्मा अपॉन एक्स बार. तो 4.4 इज सिग्मा की वैल्यू क्या है? 9 अपॉन एक्स बार फाइंड आउट करना है. यहाँ से एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 4.4. एंड वंस यू हैव एक्स बार तो आप कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो यहाँ से आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा. सो दिस विल बी 9 डिवाइडेड बाय 4.4 minus 4 upon 9. So 9 divided by 4.4 will be something greater than 2. So 9 divided by 4.4 is equal to 2.045 minus 4 upon 9. So this is equal to minus 1.95 divided by 9, which is approximately equal to minus of 0.217. 21717 ऐसे सीरीज रहेगी, but the final answer would be minus of 0.217. Okay, so again दो concept use हुए topic 3 से, coefficient of variation. And please see that कि आपको percentage terms में coefficient of variation given है या फिर नहीं. percentage terms में होता तो आप इसको into 100 मल्टीप्लाई करते. यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में नहीं है, देयरफॉर हमने इसको इनटू 100 मल्टीप्लाई नहीं करा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1 डिवाइडेड बाय Q3 minus Q1. अगर ये पॉजिटिव है, दिस इम्प्लाइज कि आपका जो न्यूमरेटर है Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1, दिस इज पॉजिटिव, which implies कि Q3 minus Q2 is greater than Q2 minus Q1. So option number 4 is the correct option. Next question, the difference between kurtosis and excess kurtosis is 3. Excess kurtosis क्या होता है? Your excess kurtosis is equal to your kurtosis minus 3. तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 3. I hope the last question. So last question is, the first 4 raw moments of the distribution are 2, 136, 320 and 40,000. The coefficient of kurtosis is, coefficient of kurtosis अगर हमें find out करना होता है तो बीटा 2 यूज करते हैं. बीटा 2 किसके इक्वल होता है? μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर के. और μ4 और μ2 स्क्वायर के लिए हम रॉ मोमेंट अबाउट ओरिजिन नहीं यूज करते हैं, दीज आर सेंट्रल मोमेंट्स. तो पहले μ2 फाइंड आउट करेंगे, फिर μ4 फाइंड आउट करेंगे. μ2 इज व्हाट? μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर. तो μ2 डैश कितना है? 136 माइनस μ1 डैश इज 2 का स्क्वायर. सो 136 माइनस 4 इज इक्वल टू 132. तो हमें न्यूमरेटर मिल गया विच इज 132 का स्क्वायर. पर अगर आप न्यूमरेटर देखो 132 का स्क्वायर तो ऑप्शन नंबर 2 में भी है एंड ऑप्शन नंबर 4 में भी है. तो वी ऑल्सो नीड द
सॉरी हमें डिनोमिनेटर मिल गया, वी नीड द न्यूमरेटर एज वेल। म्यू 4 किसके इक्वल होता है, म्यू 4 इज इक्वल टू म्यू 4 डैश माइनस 4 इंटू म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 इंटू म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 इंटू म्यू 1 डैश टू द पावर 4। म्यू 4 डैश क्या है 40,000 माइनस 4 into mu 3 dash which is 320 into mu 1 dash which is 2 plus 6 into 136 into 2 minus 3 into 2 to the power 4. So this is equal to 40,000 minus 2560 plus 3264 and minus 48। तो ये आ जाएगा एज इक्वल टू 4656। तो न्यूमरेटर में कितना आया 4656। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगेन हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फाइंड आउट करना था, पर चाहे वो कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस हो या फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो, बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन योर सेंट्रल मोमेंट, और सेंट्रल मोमेंट हम मीन से कैलकुलेट करते हैं। ओके, बट क्वेश्चन में हमें रॉ मोमेंट या मोमेंट अबाउट ओरिजिन गिवन है, तो हम उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू सेंट्रल मोमेंट एंड देन विल फाइनली फाइंड कि हमें म्यू 2 म्यू 3 या म्यू 4 क्या रिक्वायर्ड है, एंड उसके अकॉर्डिंगली बीटा 1 या बीटा 2 जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। So I hope the questions are clear, and कोई भी doubt हो so you can obviously mail us or you can ask the same on the Telegram or WhatsApp. Same goes for the query, कोई भी query हो so email is given, WhatsApp and Telegram numbers are given. You can reach out to us so that we can help you. So that is all the best for your exams.